So we need to start with which question? Question number 25. So of the following arguments are correct and which are not correct, give reason for your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes. Two heads, two tails, one of each. Therefore, each of these outcomes has the probability 1 by 3. Is this correct? Pranjita is saying, is this correct? They have already started with probability, right? I think you must be having little idea about the chapter. Okay. So this is their last class going on of the chapter, so you have to bear for 1 hour. Which of the following arguments? The first argument क्या कह रहा है ध्यान से read करो आते हैं on your seat. If two coins are tossed simultaneously, ध्यान से read करो. If two coins are tossed simultaneously, there are how many outcomes? 3 outcomes. कितने outcomes होते हैं when we are tossing two coins? 4 outcomes. Aditya, I expect कि बोलो साथ साथ. ठीक है बच्चा? How many outcomes are there? 4 outcomes. तो हमें वो outcomes कैसे पता चलते हैं बताओ? What are the 4 outcomes when we are tossing the two coins simultaneously? Head, head. Tail, head and tail, tail. Yes or no? Yes or no? Yes. So these are the 4 outcomes. And what is the statement saying? How many outcomes are there? How many outcomes are there? So 3 possible outcomes is the error in the statement. 2 heads, 2 tails and 1 of each. ये बात सही है. But when we are saying 1 of these, so point 1 will have head, point 2 will have tail. In the other case, point 1 will have tail and point 2 will have head. Is this clear? क्या ये बात समझ में आई है? तो मिस्टेक कहाँ हुई है? This is point 1, this is point 2. Right? These are the outcomes of point 1, left side and right side पर किसके outcomes हैं? Point 2 के. तो first case में आपके दोनों points पर क्या pair हो रहा है? Head. Second case में point 1 पर head, point 2 पर tail. Third में point 1 पर tail, point 2 पर head. And fourth case में both tails. ठीक है? तो ये बात सही थी बट सही तरीके से नहीं बोली गई. What is the mistake? We have one of each, but for one of each, how many outcomes are there altogether? 2 outcomes. ठीक है? Is this clear? So is the statement correct or incorrect? अब बता दो. Incorrect. गलती क्या है यहाँ पर? तो होने कितने चाहिए? 4. Right. So नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? Therefore, each of these outcomes have the probability 1 by 3. क्या ये बात सही है? No. So the probability क्या होनी चाहिए? 1 by 4. So there are 2 errors. There are 2 errors. एक error क्या है? There are 3 possible outcomes, which is wrong. So how many outcomes are there? 4. Instead of 3, how many outcomes are there? 4 outcomes are there. So probability of each outcome should be 1 by 4 instead of 1 by 3. ये बात किस किस को क्लियरली समझ में आ गई? क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछा जाए. नहीं आई? अब आ गई? हाँ? ओके. Okay. If a die is thrown, next statement पे चलते हैं. तो there if a die is thrown. Are you here on screen? Here. When I'm speaking. If a die is thrown, there are 2 possible outcomes: an odd number or an even number. ठीक है? Therefore, the probability of getting an odd number is 1 by 2. क्या ये बात सही है? क्या ये statement? Absolutely yes. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं समझते हैं. जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ये वाले सारे आउटकम्स आते हैं. ठीक है? सो अगर आप इन आउटकम्स में देखेंगे तो आपके पास ऑड कौन कौन से हैं? 1 3 and 5. So out of 6 total possible outcomes, 3 are odd and 3 are even. तो उसने अपने पूरे outcomes को किन 2 categories में divide कर दिया है? Odd number and even number. तो odd number के आने की probability क्या हो जाएगी? 1 by 2. Odd number के आने की probability क्या हो जाएगी? 1 by 2. So is the statement correct?
Understood? So with this, we have finished our NCRT exercise. ठीक है? I think Abhimanyu, these two questions are from exemplar. Old NCRT optional. Now see everyone, let's move to these questions. These questions are very interesting. Read the first question. I'm giving you 2 minutes to read the question first on your own and then understand what is the question saying. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो. Two customers, Sham and Ekta, are visiting a particular shop in the same week. दो customers हैं, एक shop पर visit कर रहे हैं, same week में जा रहे हैं, right? So the days are from Tuesday to Saturday. तो कौन से 2 days नहीं है? संडे मंडे नहीं है, तो वो ट्यूसडे से सैटरडे में जाएंगे, राइट? ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप. मतलब शाम के जाने की प्रोबेबिलिटी और एकता के जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है, राइट? On any day or another day, what is the probability that both will visit the shop on the same day and the different days? And the different days. How many people are there? Two people. राइट? कितने डेज है? 5 days. तो ट्यूसडे 5 days कौन कौन से है? पहले इसको एनालाइज करते हैं सिचुएशन को. 5 days कौन कौन से है बेटा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट? दीज आर द 5 days. तो इन्हीं 5 days में कौन जाएगा? एकता. और इन्हीं 5 days में कौन विजिट करेगा? श्याम. राइट? दोनों इन्हीं 5 days में विजिट करेंगे. अब आपको निकालना है, और दोनों के जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वली लाइकली. आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब दोनों सेम डे पर विजिट कर रहे हैं, या फिर दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज पर विजिट कर रहे हैं, या फिर दोनों डिफरेंट डेज पर विजिट कर रहे हैं. ठीक है? आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स? What are the total possible outcomes? Five. Five. पक्का? 5 for Sham and 5 for Ekta. 20. हमने 2 डाइस रोल किए थे, वो वाले सिचुएशन एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करो. जब हम 2 डाइस रोल करते हैं तो एक डाइस के कितने आउटकम्स होते हैं? 6. दूसरे के भी कितने होते हैं? 6. तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 36. कैसे निकाला? 6 into 6. तो एकता के शाम के लिए कितने डेज हैं? 5. एकता के लिए भी कितने डेज हैं? 5. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 5 times 5, दैट इज 25. तो एक एक्सपेरिमेंट आपने सीखा और उसी को यूटिलाइज किया आपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन में. टोटल पॉसिबल आउटकम्स किस किस को समझ में आ गया ये बताओ पक्का से? एनी लर्निंग गैप, कि हम इसको 25 क्यों बोल रहे हैं? एनी लर्निंग गैप. तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? ठीक है? दैट इज 5 times 5 which is 25. इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम टू एड्रेस 1 2 3 ऑन योर ओन. अब चैलेंज नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है जो बहुत जरूरी है.
ऐसे करो, नहीं सोच नहीं रहे हो। फर्स्ट क्या है, सेम डे। फर्स्ट क्या है, सेम डे। ठीक है, तो सेम डेज कौन कौन से हो सकते हैं? बोथ विल विजिट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, राइट, सैटरडे एंड सैटरडे, राइट। सेम डेज हो गए, मतलब एकता एंड श्याम। Got it? So if Ekta is visiting on Tuesday, then Sham will also visit on Tuesday. If Ekta is visiting on Wednesday, the Sham will also visit on Wednesday and so on. तो कितने favorable outcomes हो गए? 5. और total outcomes कितने हैं? 25. So probability of visiting same day क्या हो जाएगा? 5/25, which is 1/5. Is this clear? Is this clear? Yes, एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम 1/25 नहीं होगा नहीं बेटा, 15/25, 1/25। मैम? उन्होंने द सेम डे बोला तो वन एक ही डे होगा ना? हाँ तो एकता का और शाम का सेम डे, ऐसे समझो ना। एक डे मतलब एक ही दिन होगा ना, उन्होंने तो सेम डे बोला है। सेम डे में तो सेम डे ट्यूसडे भी हो सकता है, सेम डे वेंसडे भी हो सकता है, सेम डे थर्सडे भी हो सकता है, सेम डे फ्राइडे भी हो सकता है और सेम डे सैटरडे भी हो सकता है। समझे आप? तो ये तो नहीं पता ना कि वो दोनों कब जा रहे हैं। तो सेम डे ट्यूसडे या फिर सेम डे वेंसडे या फिर सेम डे थर्सडे या फिर फ्राइडे या फिर सैटरडे। तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई सेम डेज की? 5। तो ये 5 क्या हो गए हमारे लिए? फेवरेबल। और टोटल क्या है हमारे पास? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/25, दैट इज 1/5। ठीक। Yes. अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखो, पेन डाउन। अभी पहले समझने पे ध्यान दो, आई विल गिव यू टाइम फॉर राइटिंग। सेकंड क्या है? व्हाट इज द सेकंड केस? टेल मी। कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव डेज का क्या मतलब होता है? कॉन्जिक्यूटिव डेज Tuesday क्या and होता Wednesday. है? एक के बाद एक एक। दिन छोड़ के। छोड़ के नहीं, छोड़ के नहीं, छोड़ के बोलना इज रॉन्ग फॉर यू। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? एक के बाद एक। जैसे ट्यूसडे एंड वेंसडे आर कॉन्जिक्यूटिव, वेंसडे एंड थर्सडे आर कॉन्जिक्यूटिव, थर्सडे एंड फ्राइडे आर कॉन्जिक्यूटिव, फ्राइडे एंड सैटरडे आर कॉन्जिक्यूटिव। क्या सैटरडे ट्यूसडे भी कॉन्जिक्यूटिव है? नो। क्या सैटरडे एंड ट्यूसडे भी कॉन्जिक्यूटिव है? नो, क्योंकि सैटरडे और ट्यूसडे के बीच में कितने दिन आ गए? 2 डेज आ गए। ठीक है, अब समझो। अब ये वो वाला केस है, पॉइंट्स वाले एक्सपेरिमेंट से कोरिलेट करो। तो लेट्स मार्क फॉर एकता, लेट्स मार्क फॉर शाम। ठीक है, ट्यूसडे, वेंसडे, ऐसे होगा। अगर एकता ट्यूसडे आ रही है तो फिर शाम वेंसडे आ रहा है। यस, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका वेंसडे और इसका ट्यूसडे। फिर आगे चलो, वेंसडे, थर्सडे, उल्टा कर दो, थर्सडे, वेंसडे, फिर आउटकम्स हो गए। अभी एक बचा है, एक केस बचा है जो उसको रिवर्स भी करेंगे। फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। सैटरडे, फ्राइडे। हमने 2 केस क्यों लिया ये बताओ? हमने ऐसा क्यों किया कि अगर ये ट्यूसडे वेंसडे तो वेंसडे ट्यूसडे? हमें तो नहीं पता ना, पहले कहीं क्वेश्चन में मेंशन है कि फर्स्ट शाम इज विजिटिंग और सेकंड एकता इज विजिटिंग। ऐसा तो नहीं मेंशन ना, कोई भी पहले आ रहा है या कोई भी बाद में आ रहा है। तो हमने सिर्फ अपने लिए सारे केसेस बनाए। एकता ट्यूसडे है तो शाम वेंसडे है, उल्टा भी हो सकता है, एकता वेंसडे है तो शाम ट्यूसडे आ गया। तो वेंसडे थर्सडे, थर्सडे वेंसडे, ये केसेस समझ में आ गए। तो कितने फेवरेबल हो गए? 8। टोटल कितने हैं? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 8/25। So these are the favorable outcomes. Please mention.
इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लो. दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Probability for visiting on consecutive days, that is equal to 8/20. 25. Got it? Understood? Everybody? अब आप मुझे बताइए लास्ट क्या है? डिफरेंट डेज. तो डिफरेंट डेज का कैसे करोगे? अगर इसकी 1/25 है तो डिफरेंट डेज की क्या हो जाएगी? या वो सेम डेज पर आ रहे होंगे या फिर वो डिफरेंट डेज पर आ रहे होंगे. अब आप समझ रहे हो आप यहाँ पे कौन सा वाला 20 upon कॉन्सेप्ट यूज कर 25. लोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है? Probability of occurring an event plus probability of not occurring an event equals to 1. So that means the probability of two customers visiting on same day plus probability of visiting the two customers visiting on different days is equal to 1. Is this clear? तो same day पे क्या थी probability? 1/5. So probability on different days क्या हो जाएगी? जल्दी से बताएंगे. Yes, 1 minus 1/5, which is 24/25. नहीं, no, 4/5, sorry. 1 minus 1/5, which is equal to 4/5. Is this clear? Is this clear? तो हमने इसको किसकी हेल्प से कर लिया? एम्पेरिकल फॉर्मूला. किसकी हेल्प से कर लिया? एम्पेरिकल फॉर्मूला. Are we clear about all three cases? Visiting on same day, visiting on consecutive days, and visiting on different days. Is this clear? At the back, Siddharth. Clear, beta? Please do this question now on your own. और जो नकल मार के करके बैठे हुए हैं वो दोबारा रिपीट करेंगे. Repeat, beta. Have you noted the favorable outcomes? Have you written the favorable outcomes? And you're supposed to write it during the exam as well. अगर आप एग्जाम टाइम में ये सब चीजें मेंशन नहीं कर रहे हो and you're just writing the formula and putting the values, so your teacher is going to deduce the marks. Everyone is aware that CBSE checks the answer sheets with stepwise marking. So you need to be very careful about that. That petition is not done. Shall we move further? Learning. And it will strengthen your retention. Sitting idle during a class symbolizes the least interest. ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी चीज हम अपने आप से नहीं कर सकते वो कम से कम हमें 2 से 3 बार सेम डे में रिपीट कर लेनी चाहिए.
अदरवाइज आपका आउटपुट नहीं निकलता, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री शीट्स में नहीं निकला, रिएक्शन से नहीं लिख के दी हुई। Now moving ahead to this question. Question is interesting, pretty demanding, but अगर आप ध्यान से रीड करते हो तो क्वेश्चन बहुत आराम से समझ जाएंगे। What is this question say? A die is numbered in such a way that it faces what? Faces shows the number 1 2 2 3 3 6. ठीक है, इट इज नॉट द केस जिसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। इसमें दाएं के नंबर्स कैसे हैं? 1 2 2 3 3 6, 1 2 2 3 3 6, ठीक है। एंड इट इज थ्रोन हाउ मेनी टाइम्स? 2 times. Do you remember the experiment? Throwing 2 dice is equal to throwing 1 dice twice. ये पता है आपको? या आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हो या फिर आप एक डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हो, ये एक ही बात होती है। ये एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट होता है। एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। तभी यहाँ पे किसका साइन है? प्लस। तो इसमें आपको आउटकम्स नहीं लिखने 1 1 1 2 1 2, आपको क्या करना है? इनके आउटकम्स को ऐड कर देना। 1 + 1 gives you 2, 1 + 2 gives you 3, 1 + 2 gives you 3, 1 + 3 gives you 4, 1 + 3 gives you 4, 1 + 6 gives you 7, and so on. So create a table. Complete the following table which gives the few values of the total scores on the 2 throws. Complete this table and then we will do the probability. Make a grid, complete this table everyone. This is 6. How many total outcomes? Easily you can tell. 6 times 6 will be 36. तो total outcomes कितने हैं इस experiment के लिए? Total outcomes are 36. Now see, what is the question? Now you can easily solve. Pen down. Whole class, pen down. Everyone. What is the probability that the total score first part is even? What do we need to figure out? Even. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So what is the probability? Yes. 18/36. Yes, probability of getting even total score, which is 18/36, which is half. ठीक है? Is this clear? अब what is the probability that the total score is 6? Total score आपको सिर्फ 6 देखना है. So first row, second row, third row, fourth row, 6 6 1 2 3 4. That's it. That's it. 1/9. Yes. So the probability of getting 6 as a total is 4/36, which is 1/9.
Ma'am, it says at least 6, so I think it should be 6 and above. Least six and Oh, above. sorry. Yes. कम से कम 6 होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है. Right? So you have to take the 6 and the bigger values. For third case, everyone, please hold down your energy. Hold on your energy and listen to me carefully. At least 6. At least और most वाला केस सुनाया समझाया था ना. Least में क्या हो रहा है? कम से कम क्या है? 6. So you have to consider the value 6 and the bigger value. At most में क्या होता है? अगर at most 6 होता तो the 6 will be the maximum value. 6 and the smaller value. Least में क्या होगा? 6 and the bigger value. Bracket में लिख लो. 6 and bigger. क्योंकि ये बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं. Until and unless you gain that expertise, confuse होगे ही होगे. Right? 6 and bigger values. Is this clear? सिक्स एंड बिगर वैल्यूज को एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी है हमारे पास. तो वी हैव टू चेक फॉर द बिगर वैल्यूज. तो हियर वी विल बी टेकिंग 7, हियर 8, हियर 8, 6, 6 and 9, 6, 6 and 9, 7, 8, 8, 9, 9, 12. How many values? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes. The probability of getting at least 6 is equal to 15 by 36, 5 by 12. Both are the multiples of 3, Diksha. She's getting confused. Clear? Are the questions interesting? Now it's the reflection time. We have to do these numerical MCQs quickly. For 10 minutes, you have to do these MCQs. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करने को दिया था. Have you all done? लास्ट क्लास में दिया था ना when I went inside. So have you read the questions? Shall we discuss? Two dice are thrown at a time, then find the probability that the difference of the number shown on the dice is 1. Two dice are thrown, so how many outcomes are there? 36. तो अब आपको वो वाले आउटकम्स देखने हैं जिसमें डिफरेंस क्या है? 1 है. दो आउटकम्स आते हैं ना, जैसे 3, 4, 4, 5. तो 4 minus 3 will give you what? 1. 4 minus 5 minus 4 will give you what? 1. 6 minus 5 will give you what? 1. तो ऐसे पेयर्स ढूंढने. कैसे पेयर्स ढूंढने? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले. जल्दी से करो.
7 पे डाला था, मैंने 40 पे डाल दिया। Two dice are thrown at a time. Find the probability that the difference of the number shown on dice is 1. 5 by 18. Everyone is getting. Please check. समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे हैं, जब आप 2 डाइस थ्रो करते हो तो आपके पास ये सारे आउटकम्स आ जाते हैं, 36 आउटकम्स। आपको क्या करना है, आपको वो आपके लिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम क्या है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर शोन ऑन द डाइस इज 1। डिफरेंस ऑफ द नंबर क्या होना चाहिए, 1। और 1 कब होगा, जब कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे, जैसे कि 1 2 2 1। यस और नो, 2 minus 1 is 1। इसी तरीके से ढूंढेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, नहीं है, इन दोनों का 1 है। देखो इसमें हम कहीं 2 3 यस 2 3 कहीं पे भी नहीं मेंशन कि डाइस 1 माइनस डाइस 2 या डाइस 2 माइनस डाइस 1, तो दोनों के लोगे, तो दोनों वाले केसेस लोगे, ठीक है। बस बिग में से स्मॉलर नंबर को माइनस करके क्या आना चाहिए, 1, राइट। तो इसी तरीके से कौन सा हो जाएगा, 2 3 3 2, ऐसे ही 3 4 4 3, ऐसे ही 4 5 एंड 5 4, ऐसे ही 5 6 एंड 6 5। तो किसी और का डिफरेंस है, चेक कर लो, हमने कुछ मिस तो नहीं किया। 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3 4 5 5 4 6 5 5 6 and 6 5। How many, 2 4 6 8 and 10। So 10 by 36, which is 5 by 8, ठीक है, which is equal to 10 by 36। Got it? Understood? A book containing 100 pages is opened at random. Find the probability that the doublet page is found. Doublet page मतलब 10 से, two digit number. Please play with the words. Why are you making faces? Oh, just. Doublet page का क्या मतलब है? Double का क्या मतलब होता है? 2 digit number. So doublet page का क्या मतलब है? The page having which number? 2 digit number। तो 1 to 100 में, राइट, 1 to 100 में 2 digit number कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से, राइट। तो which is equal to how many numbers are there, how many 2 digit 81. numbers are there, 81. 81। Ryan, how come it is 81? मैम 2 डिजिट नंबर्स ना मैम, हाँ, 10 एंड फिर मैम ऑनवर्ड्स टू 11 to एक्सक्लूडिंग 100 100। हो जाएंगे 90, और 10 इंक्लूड करोगे तो क्या हो जाएगा, 91। 91 अपॉन 100, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, सॉरी 100 इज अ 3 डिजिट ना, हमने क्या दिमाग लगा रहे, राइट। 100 इज अ 3 डिजिट नंबर, तो कहां से कहां मूव करेगा वो, 10 टू 99, तो 90 अपॉन 100 विच इज 9 अपॉन 10। 99 क्यों होगा बेटा, 99 क्यों होगा, 99 क्यों होगा, 10 से आप 99 तक जाओगे, कितने नंबर्स होंगे, मैम 89 प्लस 1 90। मैम कैन आई से समथिंग? आई थिंक ये भी हो सकता है। इज इट इज डबलेट इज 11 22, उसको तो नहीं Yes, पता। ma'am. हाँ राइट। आई ऑल्सो मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन। Doublet page means, yes, we misunderstood the question. So doublet page goes with the numbers, the same numbers on the page. That means 11, 22,
33, 44, 55, 66, 77, 88, 9. So how many numbers are there? 9, 9 by 100. When two dice are thrown, find the probability of getting a number always greater than 4 on the second dice. Look for the condition. आपको वो नंबर चाहिए which is always greater than 4 on the second dice. Second dice पे नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए. तो कॉलम सेलेक्ट करो 5 and 6, क्योंकि अगर आप कॉलम 1 पे जा रहे हो हमें सेकंड डाइस देखना है, राइट? तो 1 2 3 4, तो ये वाले 4 कॉलम तो आपके कंसीडर ही नहीं होंगे. कौन से 2 कॉलम रह गए? कॉलम ऑफ 5 एंड कॉलम ऑफ 6. क्या ये बात समझ में आ गई एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट? So column of 5 contains 6 and 6 also contains 6. So 12 upon 36, which is 1 by 3. So the probability comes out to be 1 by 3, which is equal to 12 upon 36. Do it on your own, at your own pace, then we will discuss. I should give you time to reflect your learning. Two numbers are chosen from 1 to 5. Find the probability that the two numbers to be consecutive. ठीक है, आपको probability find out करनी है कि वो दोनों numbers क्या हैं. The two numbers to be consecutive. Consecutive कौन से number होते हैं? Which comes one after the another. तो आपके पास कितने numbers हैं? 1 to 5 है. So for 1 to 5, let's shift it here, right? So 1, 2, 3, 4, and 5. So you have to pick up how many numbers? 2 numbers. And the numbers are supposed to be what? Consecutive. Consecutive numbers कौन से होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं? Like pair of 1, 2, 2, 3, 3, 4, and 4, 5. तो favorable outcome कितने हो गए? 4 by 5. फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4. और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5. So probability is 3, 4 by 5. Is this clear? Matched everyone? Online students too? Is your answer matched? Yes, ma'am. Okay. An unbiased die is rolled twice. Find the probability that getting the sum of two numbers as prime. एक बार मैच कर ले, कुछ कुछ बच्चों 5 by 12. एक बार मैच कर ले बेटा. तो मन में करते जाते हैं. We'll write only the prime numbers. ठीक है? 1 plus 1 gives you 2. 2 is a prime number. So we'll write the result. Right? 1 plus 2, 3. 3 is a prime number. Right? 1 plus 3, 4. 4 is not a prime number. It is a composite number. 5, prime number. 6, not prime number. 7, prime number. Right? 3, prime number, composite number. Prime number, composite number, prime number, composite number. Composite number, prime number, composite number, prime number, composite number, and composite number. 9 is composite, right? 4 plus 1, 5. 5 is prime, right? And this is also composite. This is prime. This is composite. This is composite. Composite again. 6 composite. 6 composite. 7 prime, right? 8 composite. 9 composite. 10 composite. 11 prime. prime, Right? This is prime. 7, 8 composite. 9 composite. 10 composite. 11 prime. And 12 again composite. ठीक है? अब कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है? So 15 by 36. Right? So the probability is 15 by 36. Both are the multiples of 3. So this is 5 times, this is 12 times. So the probability will be 5 by 12.
देखो ऐसे न्यूमेरिकल और ऐसे एमसीक्यूज तब आएंगे जब टीचर को ज्यादा पेन देना होगा टू मेक द पेपर लेंदी, तो पेन तो आएगा। और सबसे ज्यादा पेन दिखाई देता है प्री बोर्ड्स में। प्री बोर्ड्स आर मच टफर देन द बोर्ड्स, ये ध्यान रखना। ठीक है। टू फेयर डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल शो द डिफरेंट नंबर्स। सेम वही है, दोनों में डिफरेंट नंबर्स चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, सेम नंबर्स हटा देते हैं। सेम नंबर्स हटा देते हैं, थोड़ा सा इजी काम कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हटा देते हैं। राइट, तो 6 numbers are removed from 36 numbers. तो how many numbers are left? 30 numbers are left. तो हमारे लिए फेवरेबल क्या हो गया? 30, और टोटल क्या है? 36. तो that is 5/6. Here, everyone getting? Now this question. Question number 7 ध्यान से देखो। A bag contains how many coins? 40 coins. इस बैग में कितने coins है बेटा? 40 coins है। और coins कौन कौन से denominations के हैं? 2, 5 और 10 रुपीस के coins है। अगर आप randomly एक coin को withdraw करते हो तो probability of getting 2 rupee coin is 5/8। तो ये question वो है जिसमें आपको probability given है, right? If X number of 2 rupee coins are removed from the bag, then a coin is drawn at random. तो अभी हमें नहीं पता 2 रुपी के कितने कॉइन है। 2 रुपी कॉइन की क्या गिवन है? हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, राइट। और फिर आपको 2 रुपी कॉइन कितने हैं वो निकालने के बाद आपको क्या कर देने हैं? वो सारे के सारे कॉइन्स बैग में से रिमूव कर देने हैं, राइट। देन अ कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रुपी कॉइन इज 1/2. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. एक मिनट, have you missed something? If a coin is drawn at random, the probability of drawing the rupee 2 coin is 5/8. If x number of 2 rupee coins are removed, तो रुपी 2 रुपी के कॉइन कितने हैं? x। तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी क्या है of drawing 2 rupee coin is 5/8, and later on after removing those x, it is 1/2. Yes. यस, पहले आपके पास देखो टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल कॉइन्स कितने हैं बेटा? 40। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 40। अब इन 40 कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स किसके हैं? 2 रुपीस के, कुछ कॉइन्स किसके हैं? 5 रुपीस के, और कुछ कॉइन्स किसके हैं? 10 रुपीस के। अब रीड करो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किसके कॉइन्स? 2 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 5/8। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो आप? 2 रुपी कॉइन्स की निकाल रहे हो, राइट। तो नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन, राइट, 2 रुपीस कॉइन अपॉन टोटल कॉइन्स कितने हैं? 40 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 5/8। यस, so number of rupees 2 coins क्या हो जाएगा बेटा? 5/8 into 40, so which is equal to 25। तो हमें क्या पता चला? yes, तो टोटल 2 रुपी कॉइन कितने हैं? 25। अब x नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स आर रिमूव, उसमें से x नंबर हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो अब अगर हमारे पास 2 रुपी कॉइन कितने हैं? 25। तो x रिमूव करने के बाद लेफ्ट ओवर 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 25 माइनस x। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि रिमूव करने के बाद 2 रुपी कॉइन ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाती है? 1/2। अब न्यू प्रोबेबिलिटी किसकी? टू विड्रॉ 2 रुपी कॉइन। तो आपने क्या किया है? अब आपका फेवरेबल आउटकम क्या है? 25 माइनस एक्स, तो कितने 2 रुपीस कॉइन बचे हैं? 25 माइनस एक्स। और टोटल आउटकम क्या होगा? 40 में से भी तो एक्स गए,
40 में से भी तो x है, टोटल कॉइन्स में भी से भी x चले गए, 40 माइनस x। प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है आपको, न्यू 1/2। सो 1/2 इक्वल्स टू 25 माइनस x अपॉन 40 माइनस x। ठीक है, कर सकते हैं, बट व्हेन वी हैव टू एक्सप्लेन वी हैव टू डू इट। 40 माइनस x इक्वल्स टू, एक मिनट रुको मोहक, आई एम कमिंग टू यू, ठीक है, राइट। So this will be shifted here. This will become 2x minus 2x, लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, माइनस x, 50 माइनस 40। सो x इज इक्वल टू, तुम लोग का 5 कैसे आ रहा है, यस, x इज इक्वल टू 10। तो कितने आ गए कॉइन्स आपके, 10 आ गए। दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाऊं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ओवरलोड हो गया, ओके। दोबारा समझते हैं एक बार। इसमें दो सिचुएशन, वो दो सिचुएशन क्या है ये सब। एक बैग है, बैग में कितने कॉइन्स हैं, टोटल मिला के 40 कॉइन्स हैं, और वो 40 कॉइन्स किस किस के हैं, 2 रुपीज के हैं, 5 के हैं, 10 के हैं। आगे जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है हमारा लेना देना सिर्फ किससे है, 2 रुपी कॉइन्स है, 5 से कुछ मतलब नहीं है, 10 से कुछ मतलब नहीं है। अब उसने बोल दिया कि अगर एक कॉइन, और कॉइन लिखा है ना, मतलब एक कॉइन आप बैग में से विड्रॉ कर रहे हो रैंडमली, तो अगर वो 2 रुपी कॉइन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8, राइट। तो हमने क्या किया, 2 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी 5/8 लिखी। तो 2 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि टू नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स अपॉन द टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 40, इक्वल्स टू 5/8, इक्वल्स टू 5/8। तो हमने 40 को ट्रांसपोज कर दिया तो हमें पूरे टोटल 2 रुपी कॉइन्स कितने मिल गए, यस। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 40 में से 25 कॉइन्स किसके हैं, 2 रुपीज, ठीक है। अब आगे पढ़ो, यहां तक की सिचुएशन, यहां तक का मैटर सॉल्व हो गया। अब इन्हीं 25 कॉइन्स में से कितने कॉइन्स टू, 2 रुपीज के बोल रहे हैं ना वो, 2 रुपीज के बोल रहा है, तो 2 रुपीज के कॉइन्स आप निकाल चुके हो, कितने निकाल चुके हो, 25। तो 25 में से कितने कॉइन्स को रिमूव कर रहा है वो, एक्स नंबर को रिमूव कर रहा है। अब उसने रिमूव कर दिया बैग में, ठीक है। अब फिर से आप एक कॉइन को रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो, तो अभी भी 2 रुपी कॉइन तो बचे होंगे, 25 में से तो एक्स गए, कुछ नंबर चला गया और कुछ अभी भी बचा हुआ था। फिर 2 रुपी कॉइन की आने की प्रोबेबिलिटी क्या रह जाती है, एग्जैक्टली 1/2, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास लेफ्ट ओवर 2 रुपीज कॉइन कितने बचे, 25 थे, 25 में से एक्स चले गए तो लेफ्ट ओवर कॉइन्स कितने बचे, 25 माइनस एक्स, कितने बचे, 25 माइनस एक्स, राइट। न्यू प्रोबेबिलिटी, अब न्यू प्रोबेबिलिटी क्या है 2 रुपी कॉइन आने की, 1/2। अब न्यू प्रोबेबिलिटी मतलब न्यू नंबर ऑफ कॉइन्स, एक्स तो रिमूव कर चुके हो तो बचे कितने, 25 माइनस एक्स। तो एक्स किस में से गया, टोटल में से भी गया, तो टोटल आउटकम भी कितना बचा, 40 माइनस एक्स। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। रायन कहीं ध्यान नहीं है बेटा सुनने में, ना आराध्या का है, मैंने कर लिया या उसने कर लिया, पूरी क्लास दोबारा से सुन रहे हैं, यू बोथ आर बिजी इन योर ओन वर्क। बेटा इसको क्लासरूम थोड़ी बोलते हैं, ये काम आप आगे पीछे किया करो। किसी एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से दूसरे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, या तो हम 100% एफिशिएंट हो तो समझ में आ रहा है। So what are you doing? This becomes an equation. Linear equation in one variable, which is by cross multiplication. We'll solve the value and we'll get the value for x, which is 10. Is this clear? Number कट गया ना, तो उसमें से भी तो 30 बचे ना,
उसके में तो 10 कम हुए ना, कितने कम हुए, x कम हुए, 10 कम हो गए, तो हाफ ही तो हो गई प्रोबेबिलिटी। यही मिस्टेक हो जाती है हमसे करते करते। हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम में से तो कम कर देते हैं, बट हम टोटल आउटकम में से कम करना भूल जाते हैं, ये गलती हो जाती है। चलो करो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। I will be sharing few more sheets with you as homework, and whenever we get the time on any Saturday, I will be taking the discussion and we will be closing it. अब आप प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस किसी भी बुक में से स्टार्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी we have completed, you can go ahead with एनसीईआरटी exemplar, you can go ahead with आर डी शर्मा, go blindly with any book, ठीक है। कोई भी एक बुक उठाओ, उसको कंप्लीटली खत्म कर दो हेड टू टो।